your next chapter is poverty. So for poverty, the first line you have to learn that here 1/5 of world's poor lived in India. Fine, that you have to just learn, because that can be asked in MCQ or 1 mark question, that 1/5 of world's population live in India. That is basically this data, no need to remember, otherwise this so you have to remember that 1/5 of world population, that is written in NCERT also. Now meaning of poverty. What is the meaning of poverty? Poverty here means basically the people who are not able to even fulfill their basic necessities, they are known as the poor. Fine, so that is the poverty. So this is the definition of poverty that you have to mark here. Now what is the basic necessities including? The basic necessities include food, clothing, housing, education. All these facilities should be there. So that is the basic amenities, basic necessities that should be fulfilled, otherwise a person is known as poor. Now who are poor here? Well, who are poor? Basically poor people are divided into two categories in India: poor in urban area and poor in rural area. So in rural area basically, or in urban area, the which type of poor people found? So in basically in urban area there is a rag pickers वो जो चुनते हैं ना, एक बोरी सी होती है जिनके पास एक रैग होती है और उसके अंदर वो नीचे से ये आयरन वगैरह की जो आयरन होगी, रिंग होगी, या फिर कोई एल्यूमिनियम का सामान अपने रैग में डालते रहते हैं वो, या कोबलर्स, स्ट्रीट कोबलर्स जो जूता बनाते हैं रास्ते में, बैगर्स, या फिर ये वेंडर्स, कार्ट वेंडर्स विच यूज टू मूव फ्रॉम हेयर एंड देयर फॉर सेलिंग आउट द स्मॉल थिंग्स. So they are the basically the urban poor. And what are the which type of people are rural poor? They can be the landless farmer, landless laborer, and very small holding cultivators of very small holding can be there, जिसके पास बहुत छोटा सा लैंड का टुकड़ा है, they can also be poor. And then landless agriculture laborer there, and landless laborer is there. लैंडलेस का देखो, एग्रीकल्चर का मतलब सारा एग्रीकल्चर का काम करते हैं बट दे आर नॉट हैविंग लैंड. एंड लैंडलेस लेबरर मीन्स कि ये लोग सिर्फ छोटा मोटा काम करते हैं, पूरा देखभाल नहीं करते ये क्रॉप की, या फिर पूरा देखभाल नहीं करते ये लैंड की इन द पॉइंट ऑफ व्यू एग्रीकल्चर. तो दे आर लैंडलेस लेबरर. तो ये भी होती है जैसे ये होती है ना, तुम्हारी लैंड तुम्हारी क्रॉप तुम्हारी बन गई, अब उस क्रॉप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या उस क्रॉप को अलग करने के लिए, उस क्रॉप को कलेक्ट करने के लिए लेबर बुलाई जाती है, जो कि वहाँ जाके हाथों से उसको अलग करती है. ठीक है, तो ये करते हैं यहाँ पर विलेज में बहुत सारे लोग ये काम करते हैं. तो दैट इज़ द लैंडलेस लेबरर. सो these type of poor people are there. What are the features they are having? They possess very few asset. They are having kacha house. They used to live in kacha house. They don't have even such a dwelling, and they basically they can be the migrants. In case of urban area, so they can be the migrant, because they are migrated from rural to urban area for the search of job, for the search of some employment. Fine. Now here we are discussing common characteristics of poor people. First one is the hunger, starvation, malnutrition. Then poor health they are having. They are having very poor health. They are prone to disease, very low immune system, limited economic opportunities they are having to grow up, like they are having very limited opportunity, so that they are having lack of literacy and skills, and they cannot take benefit of all these opportunities which is provided by the government. They can be debt trap, because they used to take money from money lender, because money lender no need to mortgage anything with money lender as you have to do with the bank. So they used to go to money lender and get loan from there. Then lack of facilities of electricity and water. They are not having the adequate facilities of electricity and water. Gender inequality is there, because more facilities or more they are basically poor people are having inadequate facilities, and whatever facility they are having, whatever resources they are having, they used to provide these resources to the boys, not to the girls. So this is the gender inequalities over there. Then they are having the bigger families. Generally they are having many children, and they are having big families, and so that's their economic condition become worse. Now measures of poverty, relative and absolute poverty. How can you measure the poverty? How can you say he is poor and he is more poor, he is less poor? So there are two categories: relative poverty and absolute poverty. So when you are talking about relative poverty, that means you are comparing one to another person. So that is a relative poverty. So here the definition, everything is given very nicely: meaning, example, importance, limitation. So
सो मीनिंग इज़ देयर दैट वन इज़ पुअर इन कंपैरिजन टू अदर. जब आप कंपैरिजन कर रहे हो दो के बीच में, दो स्टेट के बीच में, दो पर्सन के बीच में, देन यू कैन से दैट दिस इज़ अ रिलेटिव पॉवर्टी. यहाँ रिलेटिव यहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है. कौन से टाइप की? रिलेटिव टाइप की पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दीज पीपल आर मोर पुअर देन दोज. नाउ एग्जाम्पल की बात कर रहा है, जैसे राम श्याम से लोअर इनकम रखता है, तो राम इज़ रिलेटिव पुअर देन श्याम. इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, रिलेटिव पुअर में यू कैन कंपेयर डिफरेंट सेगमेंट, डिफरेंट रीजन, यू कैन कंपेयर, ईजिली कंपेयर. और लिमिटेशन क्या है इसकी? ये जो रिलेटिव पॉवर्टी होती है, ये सिर्फ आपको ये बताती है कि रिलेटिव पोजीशन क्या है डिफरेंट सेगमेंट्स की, बस. कौन कितना ज़्यादा पुअर है, हाउ मच पुअर अ पर्सन इज़ एंड हाउ मच ही इज़ इन नीड ऑफ द बेसिक नेसेसिटी, ये नहीं बताती कि वो कौन सी चीज़ उसको इमीडिएट प्रोवाइड करनी चाहिए, ये नहीं बताती. ये तो यही बताएगी ना कि एक दूसरे से ज़्यादा गरीब है, लेकिन ये नहीं बताती कि उसको एग्जैक्टली वो कितना गरीब है, उसको फूड चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, या फिर उसको शेल्टर चाहिए, क्या बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो जिस फॉर दैट ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ. So this is basically the limitation of relative poverty. That can be asked in the question that what is the limitation of relative poverty. तो आपको बताना पड़ेगा. देखो, आंसर के लिए आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा. अगर वो पूछ रहा है लिमिटेशन ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी और आप डेफिनेशन बतानी शुरू कर देते हो तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे. हाफ मार्क दे देगा हार्डली वो, तो आपको, और 1 मार्क में तो काटा मार देगा. और लिमिटेशन के अंदर आपको लिमिटेशन ही बतानी है कि भाई ये नहीं बताता कि हाउ मच पुअर इज़ अ पर्सन, सो दैट इज़ द रिलेटिव पॉवर्टी. ठीक है, कितनी बेसिक ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ, हाउ मच ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़, हाउ मच ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ, ये नहीं बताता ये. तो इसीलिए रिलेटिव पॉवर्टी की ये लिमिटेशन है. ठीक है, नेक्स्ट बात है एब्सोल्यूट पॉवर्टी. देखो, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब ये होता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन प्रिस्क्राइब कर रखी है, स्पेसिफाई कर रखी है कि दिस इज़ द पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन के लिए बोलते हैं कि अगर पॉवर्टी लाइन के लिए आपका एक मेथड इस्तेमाल होता है. यहाँ पर जो पॉवर्टी लाइन की बात कर रहा है, ठीक है, ये पॉवर्टी लाइन का डिटर्मिनेशन है. हाउ यू विल डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन? दिस इज द मेथड मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. दिस इज द मेथड. विच मेथड अप्लाई फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन? यू विल राइट मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इज द मेथड विद विच यू कैन डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन. सो पॉवर्टी लाइन का क्या डिटर्मिनेशन है? एज पर दिस मेथड, द प्लानिंग कमीशन हु हैज़ डिफाइंड इज द प्लानिंग कमीशन हैज़ डिफाइंड इज पॉवर्टी लाइन विद यूजिंग द मेथड मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्या है कि 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे. ये आपकी फिक्स लिमिट फिक्स हुई है मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की इन द केस ऑफ रूरल एरिया. एंड फॉर अर्बन एरिया 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे. दैट शुड बी द मिनिमम कंजम्पशन है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्सन, दैट इज़ 1 पर्सन. सो दैट शुड बी देयर कि आप इतना खाना खा लोगे 2400 कैलोरी उसमें हो. किसमें हो? ये हो रूरल एरिया के लिए, और 2100 कैलोरी अर्बन एरिया के लिए. तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ 2400 कैलोरी हेयर एंड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ 2100 कैलोरी हेयर, दैट मनी शुड हैव विद द पर्सन टू स्पेंड ऑन हिमसेल्फ. सो दैट इज़ द, इफ़ ही इज़ एबल टू, देन दैट मीन्स ही इज़ अबाउ द पॉवर्टी लाइन. अगर इतना वो कंज्यूम कर लेता है पर डे ईजिली, अगर इतना पैसा उसके पास है, इसकी इतनी मॉनेटरी वैल्यू यानी 2400 कैलोरी के लिए इसने वैल्यू भी दे रखी है एज़ पर मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, इसने वैल्यू दे रखी है. और 18 इस ईयर में 2011-12 में 816 पर पर्सन इन रूरल एरिया, 1000 इन द अर्बन एरिया. लेकिन ये डाटा है 2011-12 का. नाउ द डाटा विल बी चेंज बिकॉज देर इज़ अ चेंज इन द प्राइस. फाइन, सो दैट इज़ वाई डाटा विल बी चेंज डेफिनेटली. पर ये तो सेम रहेगा. तो आप सिर्फ इसको भी मेंशन कर सकते हो 2400 कैलोरी पर डे पर पर्सन, साथ में ये भी लिख सकते हो. बट ये इसको प्रेफरेंस देना कि 2400 कैलोरी के बारे में लिखना. सो एज़ पर द मंथली पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिस इज़ द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैलोरी इन 2011-12, 816 per person in rural area and 1000 in urban area. That is the minimum consumption should be there. So that means they are above the poverty line. If they can't do such expenditure, then they are below the poverty line. ठीक है, ये आपकी बताइए इसने बात पूरी. तो ये पॉवर्टी लाइन का डिटर्मिनेशन है. अब यहाँ बात हो रही है एब्सोल्यूट पॉवर्टी की. सो द पीपल, नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, दे आर बेसिकली द पुअर पीपल. दे आर हैविंग द एब्सोल्यूट पुअर पॉवर्टी. And according to absolute poverty, 22% of the population is below the poverty line. Fine, as per the 2011, ये सब 11-12 का ही डाटा ले रखा है इसने. उसके बाद इंपॉर्टेंस है इसकी. देखो, इंपॉर्टेंस ये है कि आपको एब्सोल्यूट पॉवर्टी में ये पता लगता है कि बेसिकली दीज पीपल आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर
इवन द फूड रिक्वायरमेंट। ये आपको पता लगता है, फूड को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है इसके अंदर। सो इसका मतलब ये है कि ये नंबर ऑफ़ पुअर पीपल भी मेजर करने में हेल्प करता है। नाउ यू कैन ईजिली कम टू नो दैट हाउ मेनी पीपल आर बिलो दिस पॉवर्टी लाइन। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ़ पीपल आर पुअर, दैट यू कैन ईजिली गेट फ्रॉम एब्सोल्यूट पॉवर्टी। लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज़ नॉट एबल टू जज दैट हु आर पुअर, हु आर वेरी पुअर एंड हु आर वेरी वेरी पुअर। तो लाइक आपको ये नहीं पता लगता कि कौन से लोग बहुत ज़्यादा पुअर हैं, कम पुअर हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। You cannot categorize the poor people. They are all in the one category. But if they are below the poverty line, they are absolute poor. They are absolute poor. And many social indicators like education, health, and many other resources, they are not considered in the case of absolute poverty. This is the limitation of absolute poverty that you have to learn. आपसे limitation पूछेंगे तो आप limitation ही बताओगे, अगर मुझे definition बताओगे I will cut the question. ठीक है। अब यहाँ पर एक बात कर रहा है हाउ टू मेजर द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। दैट हैव टोल्ड यू देयर इज अ मेथड, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इज देयर इन टर्म्स ऑफ कैलोरी एंड इन टर्म्स ऑफ मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज देयर। इसको यूज़ कर लोगे। अभी आपको बताया ना, यहाँ पर ये बताया, ये मेथड यहाँ पर बता रखा है, इसने एक्सप्लेन कर रखा है। नाउ मेजर ऑफ पॉवर्टी प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। इन प्री, देखो प्री इंडिपेंडेंट पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में तो बहुत सारे मेथड हुए मेजर करने के, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। पोस्ट का मतलब भाई इंडिपेंडेंस के बाद, प्री का मतलब इंडिपेंडेंस से पहले। तो इंडिपेंडेंस से पहले किसने, हु जस्ट फर्स्ट डिस्कस दिस पॉवर्टी लाइन, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग अंडर दिस मेथड, ही यूज जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड हु इज ही, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का नाम आपको लर्न करना पड़ेगा, दैट कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क क्वेश्चन इवन। सो दादा भाई नौरोजी डिस्कस particularly this particular thing, that is the jail cost of living and in the pre-independent period. He is the first person to discuss the poverty line. This is very important line and he used jail cost of living to calculate the poverty line. Now the thing is not used in the same way, but आपसे पूछा जा सकता है क्या है jail cost of living के अंदर। ये बात वैसे ही बता रहा है कि एज ओनली अडल्ट स्टे इन जेल एंड ही डिवाइड द पॉपुलेशन इन 2 पार्ट्स। उसने ये देखा कि भाई सिर्फ अडल्ट ही जेल में रहते हैं और इस पॉइंट से आइडिया लेके ही जस्ट कैटेगराइज द पॉपुलेशन। हाउ ही सेड दैट 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ चिल्ड्रन। ये कहता है कि जो 1/3 पॉपुलेशन है ना, यहाँ पर बात कर रहा है कि जो 1/3 पॉपुलेशन है दे आर चिल्ड्रन बेसिकली। There is 1/3 population and they are children. चिल्ड्रन में से जो हाफ हैं, हाफ जो पॉपुलेशन है चिल्ड्रन की वो कुछ भी नहीं खाती और जो बाकी हाफ है वो हाफ डाइट लेती है। तो 1/3 का हाफ कर दो, कितना आ गया 1/6 चिल्ड्रन की डाइट निल है और 1/6 चिल्ड्रन की डाइट है हाफ डाइट, थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं। ठीक है, अगर टोटल पॉपुलेशन 1 है, 1 में से तो 1/3 चिल्ड्रन माइनस कर दो, 1/3 तो चिल्ड्रन है, तो 1 में से 1/3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 2/3। बाकी जो 2/3 पॉपुलेशन है वो फुल डाइट, वो पूरा खाना खाती है। तो ये उसका एक एनालिसिस था कि इस तरह से ये एवरेज कंजम्पशन होती है। इसने कुछ वेट दे दिए, तो दैट इज़ अ वेटेड एवरेज ऑफ कंजम्पशन ऑफ 3 सेगमेंट। व्हाट इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ कंजम्पशन ऑफ 3 सेगमेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है एज़ पर दादा भाई नौरोजी। आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे करोगे, 1/6 × 0 + 1/6 × 1/2, ठीक है, प्लस 2/3 × 1। ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 3/4। दैट लाइक आई हैव जस्ट मेड द सोल्यूशन ओवर देयर। 3/4 आपका आता है बेसिकली द एवरेज पॉवर्टी लाइन एज पर द जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। सो बेसिकली 3/4 इज द आंसर एंड 3/4 इज बेसिकली द एवरेज पॉवर्टी लाइन हेयर। नाउ इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स विच आर आइडेंटिफाइड दैट ओवर देयर। यहाँ देखो 1962 प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड अ स्टडी ग्रुप। ये ऐसे कैसे आपको लर्न करना पड़ेगा। दे कैन आस्क इन 1962 विच पर्टिकुलर स्टडी ग्रुप एंड विच पर्टिकुलर इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डिटरमाइन द पुअर पीपल, नंबर ऑफ पुअर पीपल। हम ये सारे मेथड थे टू डिटरमाइन हाउ मेनी नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द कंट्री। पता लगेगा कितने लोग उसी हिसाब से एफर्ट करेंगे ना, 1-2 लोग हैं तो उस हिसाब से एफर्ट करेंगे। 22% पॉपुलेशन ही आपकी पॉवर्टी के अंडर आ रही है तो उस हिसाब से एफर्ट करेंगे। So they should come to know that how much they have to spend, how much they have to do the effort for improving the condition of poor people. तो ये सबसे पहला एफर्ट था 1962 में। एक प्लानिंग कमीशन था जिसने एक स्टडी ग्रुप बनाया। ठीक है, क्या स्टडी करना था इसने, नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द कंट्री।
In 1979, Task Force on Projection on Minimum Needs and Effective Consumption Demand, ये फॉर्म किया गया. ये भी आपको ऐसे ऐसे नाम पूरा याद करना पड़ेगा, 2-3 बार लिख के देखोगे फिर नाम याद हो जाएगा. Then in 1989, an expert group, and 2005 also expert group was constituted for the same purposes, that this much poor people is exist in India. तो ये सारे एफर्ट किए गए. ये था पोस्ट इंडिया, और जो भी मैंने अभी बताया दादा भाई नौरोजी वाला वो था प्री इंडिपेंडेंट. ये था पोस्ट इंडिपेंडेंट, वो था प्री इंडिपेंडेंट. ठीक है. कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन आई हैव डिस्कस, मिनिमम कैलोरी दिस आई हैव डिस्कस. ठीक है. इसके बाद अब अगली बात देखो, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पॉवर्टी लाइन बेसिकली. सो पॉवर्टी लाइन is poverty line in India that has been updated by many economics. So this is the updation of poverty line. Poverty line can categorize the poor and non-poor people. Like in poor people, we are having absolute poor, very poor, and then poor. So basically, these type of poor, absolutely poor, they are in the vulnerable situation, comparatively very poor and poor. So this is suppose in this global disease, government has to just help out these type of, first of all, absolutely poor, then very poor, then other people. So this is the poverty line, means the minimum requirement. Basically, these are the people who are not fulfilling the minimum requirement. So that is why they are below the poverty line. And these people are above the poverty line. They are non-poor. What type of people these are? Not so poor, middle class, upper middle class, the rich, the very rich, millionaire, billionaire. So these type of people are non-poor. So you have to the question can be asked that how poverty line can categorize the poor and non-poor. Then you have to make this flow chart like this. Right? There is another categorization of poverty, that is chronic poor, transient poor and non-poor. तो देखो इसमें chronic poor में ये this is the line which shows a poverty line, and they are making this diagram like this, and now these curved line that shows the poor people. So the people here are always poor, हमेशा poor रहते हैं क्योंकि poverty line से नीचे हैं. ये जो chronic poor है, they are not always poor, they move in and out. They sometime they used to cross the line, और one time they can cross the line. They are the usually poor. ये वैसे तो poverty line से नीचे रहते हैं, मगर एक टाइम कभी ये they can cross the poverty line, so they can be these type of people are usually poor, and they both are chronic मतलब बहुत ज़्यादा जो गरीब हैं. देन ट्रांजिएंट पुअर, थोड़े थोड़े ट्रांसफ़र हो रहे हैं ये. तो इसमें क्या है, चर्निंग पुअर तो दे मूव इन आउट, अंदर आते रहते हैं जाते रहते हैं. ये ऐसे इस टाइप से होते हैं. कभी गरीब कभी नहीं है, कभी हैं कभी नहीं, कभी कैलोरी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई कभी नहीं हुई, इस तरह से. और ओकेजनली पुअर में they used to fulfill the requirement of the poverty line, but sometime they become poor. कभी कभी नहीं भी होती तो they become poor at that time. उसके बाद आपका इसको बोलते हैं transient poor, churning poor and occasional poor. Then known poor, now they are known poor, they are never poor, so that is why that is above, very above poverty line, so they are the known poor and never poor. तो तीन आपकी कैटेगरी होगी, chronic poor, transient poor and known poor. So we can use the poverty line for categorizing the people like this. Earlier we have categorized poor and non poor, now chronic poor, transient poor and non poor. तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया कि ये कैटेगराइजेशन फिर अपडेशन हुआ ना पॉवर्टी लाइन का, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. अब ये क्रिटिसिज्म है पॉवर्टी लाइन की. ये पॉवर्टी लाइन कौन सी है, वही मंथली कैपिटा एक्सपेंडिचर वाली. वो तो नहीं कैटेगराइज करती थी ना, तो फिर बाद में इसके ऊपर अपडेशन हुई, तो उसके बारे में बात कर रहा है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं करती थी पुअर एंड नॉन पुअर के बीच में, या पुअर एंड अदर पुअर के बीच में. और जो आपका मंथली एक्सपेंडिचर था, दैट बेसिकली हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द पुअर पीपल. ठीक है. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द पुअर हु नीड इमीडिएट हेल्प, and they are also not taking the other indicators like education, healthcare, drinking facilities and other facilities. They are not taking it, and they are not taking it as for determining the poverty line. दूसरा इसमें सोशल फैक्टर भी कहीं कंसीडर नहीं होते थे, लाइक इल हेल्थ, किसी की इल हेल्थ है बहुत ज़्यादा, कोई इलिटरेट है, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर सोशल फैक्टर भी कंसीडर नहीं होते व्हेन यू आर डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन. like access to resources, discrimination, lack of civil and other basically freedoms. So these things are not included. Okay, because poor people are vulnerable, the things are not accessible to them as they are to normal people like non-poor people. So due to various limitation, basically many other methods have been invented. Basically यहाँ पर आप बता रखा है अमर्त्य सेन, that is a Nobel Prize winner. He developed an index known as SAN index. That is given in NCERT में, इसको लर्न करना पड़ेगा, तो मैं ये NCERT में भी given है. तो अमर्त्य सेन ने एक SAN index करके मेथड दिया, and many other methods have been tools are there
पॉवर्टी गैप इंडेक्स, जैसे पॉवर्टी लाइन है ना वैसे यही है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स एंड स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप। आपको सिर्फ नेम याद करने हैं, इसके एक्सप्लेनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, एंड दैट इज़ नॉट गिवन इन योर बुक, बट नेम यू आर टू लर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट कैन बी आस्क्ड, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है भाई, लाइक गिव पॉवर्टी लाइन इज अ टूल बट देर आर राइट डाउन द अदर टूल फॉर डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन, देन यू विल राइट पॉवर्टी गैप इंडेक्स स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप, इस तरह से आप बता सकते हो, ठीक है। अमर्त्य सेन एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिक्स हैं और नोबेल प्राइज़ विनर भी है, ठीक है। तो सैन इंडेक्स करके दिया उन्होंने एक इंडेक्स, जिसका भी इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है फिलहाल, ठीक है। इसके बाद बता रहा है कि इज देयर एनी डिक्रीज इन द पॉवर्टी लाइन। देखो ये तो क्वेश्चन है क्रिटिकल अप्रेजल वाला, तो दैट कैन क्वेश्चन यू कैन डिस्कस एट लास्ट इवन, तो अभी इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि आप इज देयर डिक्रीज इन द पॉवर्टी लेवल, कुछ डिक्रीज हुआ गवर्नमेंट के एफर्ट्स से, तो पहले गवर्नमेंट के एफर्ट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद बात करेंगे। ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, तो दिस इज़ द एक्चुअल डाटा। देखो ये क्वेश्चन आपसे वैसे भी पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया इन द लास्ट 10 ईयर, इस तरह से आपसे बात कर सकता है, तो आपको ये यहाँ पर बताना पड़ेगा, एंड रूरल अर्बन टोटल, ये देखो ये एक तरह से डायग्राम बना रखा है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना रखा है आपके लिए। रूरल ये ब्लू लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ग्रे लाइन को टोटल, और ये जो बहुत थोड़ी डार्क है ये अर्बन। तो ये आप देख रहे हो कि इन स्टार्टिंग रूरल पुअर आर मोर देन अर्बन पुअर इन 1973-74। आपको डाटा भले ही लर्न ना हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या रहा। ट्रेंड ये रहा फ्रॉम 1973 रूरल पुअर आर मोर देन अर्बन पुअर, एंड देन आफ्टर 80s, आप ऐसे याद करो ना, आफ्टर 80s क्या हुआ, रूरल पीपल एंड अर्बन पीपल दे आर नाउ द डिफरेंस बिटवीन रूरल पीपल एंड अर्बन पीपल बिकम लेसर, थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ यहाँ पर 1980s में। एंड देन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द रूरल पीपल इज इक्वल टू अर्बन पीपल इन 1987, ठीक है। एंड आफ्टर दैट रूरल पीपल एंड अर्बन पीपल आर वेरी पुअर पीपल, वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड देन व्हाट हैपेंड दैट like you can see the data from 1989 to 2000, rural people and urban poor people, they were very close to each other. The number of rural people in urban area, number of rural people in rural area, number of poor people in urban area, number of poor people in rural area, they were very close to each other from 1987 to 2000. But after 2000 the number of poor people in rural area is going to increase than comparatively number of rural poor people in urban area. ये देखो ये ऊपर चला गया ना, ये कम हो गया। इस तरह से आपको ट्रेंड ध्यान रखना पड़ेगा, 2-3 बार ग्राफ को पढ़ लेना, तो आप इतना भी अगर बता पाते हो ईयर वाइज तो भी चलेगा, ज़रूरी नहीं कि आप डाटा लर्न करो। एक तो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि राइट डाउन एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन डिफरेंट ईयर इन द लास्ट 10 ईयर विद द कंपैरिजन ऑफ रूरल एंड अर्बन विद द रूरल एंड अर्बन एरिया, ठीक है। ये आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ऐसे 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आप ये लिख दोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा, ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है ये बना हुआ आएगा, इस तरह से सारा बना हुआ आएगा, और वो बोलेगा कि नाउ you are to analyze this diagram and write down the trend of poverty in different years of rural and urban, ठीक है। तो आपको फिर तो आपको सामने बना हुआ है, तो आप तो देख ही लोगे 1973-74 में क्या हो रहा है, रूरल पीपल आर मोर देन पुअर पीपल अंडर रूरल एरिया इज़ मोर देन पुअर पीपल अंडर अर्बन एरिया। तो ये आप यहाँ पर तो बता ही दोगे, ठीक है ना। ये देखो यहाँ तो आप इसको कर ही लोगे, उसके बाद यहाँ भी बता दोगे कि ये इससे ज़्यादा है, फिर ऐसे कंपैरिजन करके हर एक साल का लिखते जाना और इसका ट्रेंड बताते जाना। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, तो ये आपको देख के लिखना है, देख के तो लिखना आसान है, ठीक है। बेसिकली ये है क्या, दिखा क्या रहा है यहाँ पर आपको, ये इस तरह से डायग्राम आता है, तो ये हेड काउंट रेशो दिखा रहा है। हेड काउंट रेशो क्या होता है, देखो हेड काउंट रेशो होता है कि हाउ मैनी पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं हेड काउंट रेशो। तो proportion of total population is below the living below the poverty line, that is the head count ratio. 20% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन सपोज करो 100 है और बिलो पॉवर्टी लाइन 20% रह रहे हैं, तो ये हो गया तुम्हारा हेड काउंट रेशो। तो हेड काउंट रेशो का पहले डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज़ हेड काउंट रेशो, उसके बाद आप बताना शुरू करोगे ट्रेंड कि ये इससे ज़्यादा है, रूरल ज़्यादा है अर्बन से, यहाँ रूरल ज़्यादा है, यहाँ रूरल ज़्यादा अर्बन से, यहाँ भी रूरल इस ईयर में भी, देन दे बिकम इक्वल, देन अगेन दिस इज़ मोर देन। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करते जाओगे लास्ट तक, बस यही आपने लिखना होता है एनालिसिस ऑफ डायग्राम में। बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, बहुत इसमें बड़ा स्कोरिंग होता है ये, अगर ये वाला आता है। लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन आए थे ऐसे, खूब स्कोर किया बच्चों ने उसमें,
तो ये डाटा बेसिकली दिया है एनएसएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम ही यही है। नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डाटा कलेक्ट करती है टाइम टू टाइम, और इकोनॉमिक कंडीशन के, सोशल का, पॉपुलेशन का, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का, ये सब डाटा कलेक्ट करती है। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल डाटा है 1973 से 2012, ये एक्चुअल डाटा है आपका इंडिया का। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल डाटा है। हो सकता है आपको डायग्राम दे रखा हो, फिर आपको बोले एनालाइज करें, और हो सकता है आपको सीधा बोले कि राइट डाउन द ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी रूरल एंड अर्बन एरिया इन डिफरेंट इन द लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, इसी ईयर से पूछेगा आपसे, 1973 से 74 से 2000, जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है यही पूछेगा आपसे, फ्रॉम 1973 टू 2012 यही बोलेगा ये। ठीक है, आप ये हेड काउंट रेशो लिखोगे। ठीक, हेड काउंट रेशो की डेफिनेशन लिखनी ज़रूरी है, आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद एब्सोल्यूट पुअर, तो यू नो दैट एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, और हेड काउंट रेशो में परसेंटेज निकाली जाती है कि हाउ मच प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, ये आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट पेज पे दे हैव मेड दिस द डायग्राम इन दिस वे, आपको इसने अलग अलग बना के दिखा रखा है, रूरल, अर्बन, देन टोटल, ये आपने इसने अलग अलग बना के दिखाया हुआ है। और ये है नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, नंबर ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया। ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया एग्जैक्टली, ये नंबर ऑफ पुअर पीपल दे रखा है। दे आर नॉट इन परसेंटेज, दे आर इन मिलियन। ठीक है, नंबर ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया, यहाँ पर नंबर ऑफ परसेंटेज था ना, हेड काउंट रेशो में परसेंटेज था, यहाँ नंबर ऑफ पुअर पीपल है। ये इस तरह से बता रखा है आपको एकदम क्लियरली, आपको ये बताना ज़रूरी है। आपको डायग्राम बनाने को नहीं बोला जाएगा, या तो डायग्राम गिवन होगा ये वाला, या फिर आपको बोला जाएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया 1973 2012 डिस्कस द ट्रेंड। तो आपको ट्रेंड पता होना चाहिए भाई, कि भाई ये टोटल है आपका, रूरल एरिया आपका है ये, और अर्बन ये। तो रूरल में ज़्यादा रहा नंबर ऑफ पुअर पीपल लाइक, और ये डिक्रीज़ हुआ, किस साल में डिक्रीज़ हुआ, 1989 में डिक्रीज़ हुआ, ये 1993 में डिक्रीज़ हुआ ये, उसके बाद फिर इंक्रीज़ हुआ। तो ये आपको ट्रेंड याद रखना पड़ेगा कि कब चेंज आया, अदरवाइज़ तो ये तो स्मूथ ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ, ये ईयर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और अर्बन एरिया में ऑलमोस्ट स्मूथ जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि फ्रॉम दिस टू दिस ईयर ये सारे ट्रेंड रहा। और अगर आपको पता है कि गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर ईयर में कोई स्टडी ग्रुप या फिर कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट किया, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो साथ में इसको। ठीक है, इस तरह से ये आपको एक्सप्लेन कर रखा है सारा इसने, जो भी इस पैराग्राफ से बनता है कि 2011-12 में इतना परसेंटेज था, देन 1973 टू 74 में 250 मिलियन के आसपास थे, और अप्रॉक्स लिख देना ना, 350 मिलियन अप्रॉक्स करके डाटा लिख देना। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है।